गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा। तो अब एक जो हमने पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट किस तरह से था बैलेंस शीट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के रिगार्डिंग। फिर हमने देखा एक पुराने शेड्यूल 6 में और नए शेड्यूल 6 में डिफरेंसेस भी देखा। तो अब एक फॉर्मेट वाइज देखेंगे और थोड़ा बहुत उन्हें समझ लेंगे। प्रैक्टिकल में जब देखेंगे तो ईजी हो जाएगा फिर हमारे पास। मतलब ये भी एक तरह से प्रैक्टिकल पार्ट ही कहूँगा। वैसे प्रैक्टिकल पार्ट इसलिए कहूँगा क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिए फिर हमारे को बता रखा ये हेड है, ये हेड है, ये फॉर्मेट होगा। तो सही मायने में यहीं से ये देखिए क्या कह रहा है अपने को, फॉर्मेट ऑफ रिवाइज शेड्यूल ऑफ 6 देखिए। एक मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर देखा है तो कुछ नहीं है अपने को। तो इसमें हम जो देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या इसको क्या इंस्ट्रक्शन है बनाते समय। पार्ट फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट्स, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो पार्ट फर्स्ट में सिर्फ हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे किसके, बैलेंस शीट प्रिपरेशन की, जबकि पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की। तो देखिए अपने पास क्या दे रखा है हमारे को। ये कह रहा है हमारे को कि जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी। तो कह रहा है पहले वेयर कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द एप्लीकेबल टू कंपनीज रिक्वायर्ड एनी चेंज इन द ट्रीटमेंट और disclosure of including the additions, the amended, substitution, the limitations in the head of head, subhead, or the any changes in the financial statement of the statement of the forming part thereof, the same shall be made and the requirements of the schedule 6 shall be modified accordingly. ठीक है। सेकंड देखिए, the disclosure requirement specified in the part first and the second of this schedules are in addition and not in substitution of the disclosure requirement specified in the according to the standards prescribed under the Companies Act 1956. Additional disclosure specified in the accounting standards shall be made in the notes of the accounts or by way of additional statement unless the required to be the disclosures on the face of the financial statement of the similarly other than the disclosure required to the company 1956 shall made in the notes of the accounts addition in the requirement set out in the schedules. देखिए, note of account shall contains the information in addition to that presented in the financial statement and the shall provide where required. तो देखा narrative descriptions देखिए एक बार and disaggregations description of the item recognized in these statements and the second informations about items that कहाँ के चले गए, sorry, information about the items that do not the classified the for the recognitions in those statements. Each items on the face of the balance sheets and the statement of the profit and loss shall be cross-referred references to any related information in the notes of accounts. ठीक है, मतलब जो भी चीज़ होगी वो नोट ऑफ अकाउंट्स में देंगे हम अलग से। In preparing the financial statement, including the note of the accounts and balance sheets will be maintained between the providing exceeding details that may not assist and user of financial statement and the not providing the important of the information as a result of the too much aggregations. ठीक है, मतलब कह रहा है कि पहले जो ऊपर आएगा उसमें आपको एग्रीगेट लिखना है। जैसे मान लो देखो नॉन टेंजिबल असेट्स के बारे में लिखना है आपको, तो नॉन टेंजिबल असेट्स लिखिए आपने, तो नॉन टेंजिबल असेट्स नीचे डिटेल दोगे उसके ऊपर, पेटेंट्स था, कॉपीराइट्स था, ट्रेडमार्क्स था, वो हो गया वर्क ऑफ उसका नोट ऑफ अकाउंट्स वाला पार्ट। Depending upon the turnover of the companies, the figures of the appearing in the financial statement may be rounded off as below. Turnover and the rounding of less than 100 crore rupees, rounding off to take देखिए टू टेक जस्ट हंड्रेड्स थाउजेंड्स एंड द लैक्स ऑफ द बिलियंस ऑफ द डेसिमल्स देयर ऑफ, ये ऊपर देख चुके थे अपन पिछले वीडियो में थ्योरी में। 100 करोड़ रुपीज ऑफ द मोर द नियरेस्ट द लैक्स मिलियंस एंड करोड्स ऑफ द डेसिमल ऑफ द देयर ऑफ, मतलब वहाँ लाखों में तो यहाँ करोड़ों में हो गया वो बस। Once the units of the measures in the use its schedule to be used uniformly in the financial statement. पांचवा पॉइंट देखिए, except in the case of the first financial statement laid before the company after its incorporations, the corresponding amounts of the comparatives for the immediately preceding the reporting periods for all items shows in the financial statement including notes shall also be given. For the purpose of these schedules, the terms used herein shall be as per the applicable accounting standards. एक बात नोट कीजिए इसमें, नोट दिस पार्ट ऑफ द शेड्यूल एज शेड्यूल सेट्स, एक सेकेंड, तो ये देखिए इसके अंदर अपने को कह रहा है, एक बार नोट देख लेते हैं।
sorry, this part of the schedules after the minimum requirement of the disclosure on the face of the balance sheets and the statement of profit and loss. Here in after refers to as financial statement for the purpose of schedule these schedules and notes line item, sub-line items and subtotals shall be presented as an addition or the substitution on the face of the financial statement when such presentation is relevant in the understanding of the company's financial positions or the performance of, or to cater to industry sector specific disclosure requirements and when required to the companies with a amendment of the company acts under the accounting standards. अब ये देखिए बैलेंस शीट्स का आपको एक फॉर्मेट दे रखा है इसके अंदर. सबसे पहले देखना नेम ऑफ कंपनीज, बैलेंस शीट्स एज एट जो भी डेट होगी 31 मार्च इन रुपीज़. अब इन रुपीज़ के अंदर वो 1 लाख 1 करोड़ वाली बात बताई थी ना, वो यहाँ आएगी कि अगर एक 100 करोड़ से नीचे है तो लाख में, 100 करोड़ से ऊपर है तो करोड़ में आएगा. इस तरह में था. तो इसमें दो होते हैं अपने पास. देखिए पर्टिकुलर्स नोट ऑफ अकाउंट्स. ये नोट ऑफ अकाउंट्स वो है जो कि हम उसके रिगार्डिंग नोट नंबर 1 नोट, जैसे मान लो शेयर होल्डर फंड्स के रिगार्डिंग नोट नंबर शेयर कैपिटल के लिए आएगा नोट नंबर 1. तो नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल कितनी कितनी कैसे थी, फिर आएगा रिजर्व सरप्लस क्या आएगा नोट नंबर 2. अब मनी रिसीट्स अगेंस्ट द शेयर वारंट्स है ही नहीं तो इसके लिए कोई नोट नहीं है. चौथा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग स्टेटमेंट, ये भी नहीं है तो नहीं आएगा. तो सीधा थर्ड स्टेटमेंट नॉन करंट लायबिलिटीज वाला भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का आएगा. तो ये जहाँ जहाँ जितने हैं वहाँ लिख देंगे. जरूर नहीं है कि अपन को 20 नोट्स लिखने पड़े, 5. ये डिपेंड करता है कितनी इन्फॉर्मेशन है और कितना हमारे पास अवेलेबल है. तो ये है. तो ये देखा है फिगर सेकंड नोट ऑफ अकाउंट्स, फिगर एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड्स, फिगर एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड्स. मतलब ये प्रीसाइडिंग ईयर्स और करंट ईयर का दोनों को एक साथ देते हैं अपने. एक में प्रीसाइडिंग ईयर्स होता है पहला वाला, दूसरा करंट ईयर का होता है. तो कोई दिक्कत नहीं है. देखिए सबसे पहले दे रखा है आपने को ये लायबिलिटीज साइड्स वाला जो होता है, मतलब पहले जो उसमें हुआ करता था टी फॉर्म में, तो मतलब लायबिलिटीज वाला पहला आएगा. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि अपना जो मेन बेसिक हेड चल रहा है वहीं समझ में आ रहा है. इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहला हेड देखिए लिखा आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. जब आप नीचे देखोगे असेट्स वाले में तो वहाँ पर लिखाएगा असेट्स. ये देखिए दूसरा असेट्स, ये असेट्स, ये वाला पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज. दूसरा अपने देखोगे असेट्स 4 पॉइंट के बाद. तो पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उस इक्विटी लायबिलिटीज के अंदर 4 सब हेड होते हैं, 4 हेड होते हैं. तो पहला हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर फंड्स का मतलब जो नेट वर्थ में जो चीज़ें शामिल होती है, जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी, रिजर्व सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स के इसमें आएगा. तो शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स. फिर देखा हमने को शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. थर्ड देखा नॉन करंट लायबिलिटीज जिसमें भी अगेंस्ट 4 हेड है. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है. उसके बाद करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लायबिलिटीज है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है. अभी एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताएंगे. फिर ये टोटल हो जाएगी इसके यहाँ पे. फिर आएगा असेट्स. असेट्स वो जो बैलेंस शीट्स का असेट्स वाला पार्ट था. अब यहाँ देखो 2 हेड है, एक नॉन करंट असेट, दूसरा है करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स में भी देखिए पहला हेड दे रखा है सब हेड फिक्स असेट्स और उसके अगेन 4 सब हेड दे रखे हैं. टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट. देखो टेंजिबल असेट्स जिसे हम देख के छू सकते हैं और जो अपने पास अभी परफेक्ट है, मतलब पूरी कंप्लीटेड है. एक होता है इंटेंजिबल असेट्स जो अपने पास है, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस वैसे बता देता हूँ अभी, नीचे डिटेल में और आएगा. टेंजिबल असेट्स वो होता है जो हमारे पास, जैसे बिल्डिंग पूरी कंप्लीट है, अब अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया कि मतलब जो असेट्स पूरी होने के बाद टेंजिबल हो जाएगी, वो अभी अधूरी है, उसका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कर रहा है. जैसे मान लो एक बिल्डिंग बना रहा हूँ मैं, अभी ना तो पूरी बिल्डिंग बनी है और ना अधूरा खंडर टाइप बन के आधा सा ढांचा खड़ा हो गया, अभी बाकी फर्निशिंग सारी चीज़ें बाकी है. इसका मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा. वो टेंजिबल असेट्स में नहीं आएगा. टेंजिबल असेट्स में तब आएगा जब पूरी बिल्डिंग बन चुकी होगी. इस तरह पे इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, मान लो पेटेंट के लिए प्रोसेस चल रही है, 31 मार्च आ गई, तो पूरा प्रोसेस के बाद हमें पेटेंट्स मिल जाएगा, तो पेटेंट्स में चल जाएगा उधर, या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क जो भी अभी अपने पास अंडर डेवलपमेंट कि अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, वो यहाँ आएगा. सेकंड देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. थर्ड है अपना डेफर्ड टैक्स असेट्स, उधर लायबिलिटीज था, इधर नेट है. ये क्या होता है कि अकाउंटिंग जो टैक्स होता है और जो एक्चुअल टैक्स होता है उसके बीच में जो डिफरेंस था, उसके रिगार्डिंग असेट्स भी पेबल भी हो सकता है और रिफंडेबल भी हो सकता है. रिफंडेबल का मतलब ये एडवांस भी हो सकता है, तो जो आगे जाके एडजस्ट करेंगे. तो अगर एडवांस हमने टैक्स पे कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास एक तरह से हमारी असेट्स के रूप में जाएगा. एक और लॉन्ग एडवांस टैक्स इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि हमने एडवांस टैक्स की अलग चीज़ होती है, तो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड एक्चुअल वाली चीज़ में आता है.
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, अदर नॉन करंट एसेट्स, अब इसमें भी नेट वाला भी डिफर्ड टैक्स एसेट नेट एसेट्स में नीचे आ जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज एंड अदर करंट एसेट्स। तो ये चीज़ें थी हमारे पास। अभी इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इसको एक एक चीज़ में डिटेल करने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।